Honorable Principal Ma'am, Dr. Rama Sharma. In the leadership of our Principal Ma'am, we are going to organize the webinar on the topic, the formation of Indian Constitution, a historical perspective. Our resource person is Dr. Amit Kumar, Head of the Department of Public Administration, SD College Barnala, Punjab. Dear participants, our college is the leading college in the Malwa region of Punjab and affiliated to Punjabi University Patiala. Our college is founded in 1956. It is very leading and historical moment, and it is very oldest college in the region of Malwa in Punjab. And our college stood leading position in every year in the university level in the academics, cultural, sports, NSS, NCC, and we are organizing and we are running the courses, UG and PG courses, and as well as our college press, Samaj Te Patrakar, is also running smoothly. Dear participants, we have multiple disciplinary participants. We have three principals. One of our honorable principal from Ludhiana, principal from Ambala, and very renowned advocate Pawan Sharma from the Supreme Court of India, postdoctoral fellow Dr. Manraj Singh, Punjab University, Chandigarh, IQAC in charge Dr. Rajesh Kumar Gupta ji, and dear students. First of all, I would like to tell about our keynote speaker, Dr. Amit Kumar. He has multiple publications, more than 20 publications, research papers, presentations, and also worked with the United Nations Development Program in justice in northern India also, and we are very lucky to be with him. He will inform us and guide us and tell us the formation of Indian Constitution, a historical analysis. So I will not take more time. So I request to Dr. Amit Kumar to present today's webinar. Thank you. Am I audible, Dr. Manjeet? Yes, sir. Yes, sir. You are fully audible. Respected Principal Madam Dr. Rama Sharma ji, Dr. Manjeet ji, my colleague, faculty members, and teachers from different institutions, and dear students. Today I am going to deliver a lecture on formation of Indian Constitution, a historical analysis. Before going to deliver this lecture, I want to clear a concept, what is Constitution. We must know about what is Constitution before going to start the historical perspective of the formation of Indian Constitution. If we don't know what is Constitution, so we will be unable to understand the formation of Constitution. So first of all, I will discuss with you what is Constitution. A constitution is a set of rules that guides how a country, state or other political organization works. संविधान एक कानूनों का एक ऐसा पुलंदा है जिसमें राज्य, देश और उसके जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं
ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी डिटेल उसमें मेंशन होती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, governor, chief ministers, all these institutions and posts have been discussed in the constitution very clearly. It means constitution guides us how these institutions, how these posts will work, including constitution also mention the accountability and responsibility of these institutions and posts and designations. The constitution may tell what the branches of the government are. संविधान हमें ये भी बताता है कि सरकार की ब्रांचें कौन कौन सी हैं। सरकार की यूजुअली 3 ब्रांचेज हैं। एक तो लेजिस्लेचर जो कानून निर्माण का काम करती है, और दूसरी एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं, जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं, जिसको हम सरकार भी बोलते हैं, और तीसरा जुडिशियली। ये तीनों जो ब्रांचेज हैं वो देश के डेवलपमेंट के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। इनमें से कोई भी ब्रांच डिक्टेटर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है। अगर लेजिस्लेचर कोई काम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती है, मतलब इनकैपेबल टू डू इट्स वर्क, तो वहाँ एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, वहाँ जुडिशरी है। अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आवाज नहीं आ रही? हेलो, आई आवाज? ओके, सॉरी। अगर इन 3 ब्रांचेज में से कोई भी ब्रांच अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रही है, तो यहाँ चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है। संविधान में मेंशन है, अगर पार्लियामेंट अपना काम अच्छे से नहीं करेगी, पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर अच्छा सा काम नहीं करेगी, तो वहाँ जुडिशरी अवेलेबल है। तो जुडिशरी जो है उसको रोक देगी अगर संविधान के खिलाफ वो काम करेगी। एग्जीक्यूटिव के लिए भी लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद जुडिशरी। ऐसा नहीं कि भाई जुडिशरी अपने आप में ही एक सुप्रीम अथॉरिटी है। जुडिशरी भी अगर काम अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पार्लियामेंट है। वहाँ के जजेस को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपना काम ईमानदारी से और रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं करेगा, तो क्या है, उसको पार्लियामेंट के पास पावर है, उसको हटा सकती है। What powers they have and how they work, it may also state the rights of citizens. ये मैंने बताया कि जो सरकार की 3 ब्रांचेज हैं वो किस तरीके से काम करेंगी। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो संविधान में मेंशन है। इवन के संविधान में ये भी मेंशन है कि देश का सिस्टम कैसे चलेगा, देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज विच गाइड अस टू मेक सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो उसमें जो है एलोबरेट किया गया, उसमें मेंशन किया गया है। इवन के उसमें संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं कि उसमें ये भी मेंशन है कि कोई इमरजेंसी की अगर कोई सिचुएशन अगर आ जाती है, तो कौन से जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा जो रूल्स रेगुलेशन है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस कोई करता है, गवर्नमेंट जॉब में कोई है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस ऑफ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सरकारी जो एम्प्लॉय है 5,000 से ऊपर का कोई गिफ्ट कोई एक्सेप्ट करता है, तो उसको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म करना होता है। इवन के अगर कोई भी सिविल सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई प्लॉट खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, या कोई प्राइवेट कोई बिजनेस करता है, उसको जो है अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन को जो है इन्फॉर्म करना होता है। तो इसी तरीके से क्या है कि संविधान के अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं जिनके बिना पर, जिनके बिहाफ पर जो है हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, उसमें सोशल डेवलपमेंट की बात है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये जानना बहुत जरूरी था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन।
तो नेक्स्ट देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है जिसको प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जानना भी बहुत जरूरी है। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। वो स्पिरिट क्यों बोलते हैं, ये कई बार सवाल आता है कि स्पिरिट क्या है। जो भी संविधान में मेंशन किया गया है, जो आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो ब्रीफ है, वो प्रियम्बल के अंदर मेंशन किया गया है। प्रियम्बल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्या है कि संविधान किसी मैटर में आके साइलेंट अगर हो जाए, मतलब कि संविधान के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं ना, सॉरी अब तो 25 हैं, स्टार्टिंग में थे, लेकिन 395 तो ओरिजिनली आर्टिकल्स हैं, लेकिन अब 465 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं उसमें, सब आर्टिकल्स उसमें इंक्लूडिंग है। तो उसमें 25 पार्ट्स हैं और 12 जो है वो शेड्यूल्स हैं। इनमें से मान लिया कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, क्योंकि टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सोशल इन्वायरमेंट बदल रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदल रहा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो उसमें हमें किसी नए कानून की आवश्यकता हो सकती है और उसके हिसाब से हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। मान लिया कि कोई मैटर, कोई आर्टिकल, जिस टॉपिक पे कोई कानून बना रहे हैं, कोई मतलब कोई पार्लियामेंट कोई कानून अगर बनाना चाह रही है, तो अगर उसने कानून कोई बना दिया और वो संविधान में मेंशन नहीं है, तो उसकी जो रिव्यू करने की जो पावर है, वो जो कानून पार्लियामेंट ने फ्रेम कर दिया, उसको रिव्यू करने की जो पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इसको रिव्यू करेगा कि भाई ये संविधान या संविधान का जो प्रियम्बल है उसकी स्पिरिट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कानून ऐसा बन जाए जो संविधान उसको गाइड नहीं कर रहा है, तो प्रियम्बल में जो है सुप्रीम कोर्ट देखता है कि भाई प्रियम्बल की स्पिरिट क्या कहती है। प्रियम्बल में देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेंटी, किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हमारा किसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, हम आज़ादी से काम करेंगे। समाजवाद है, समाज का नियंत्रण होगा, लोगों का नियंत्रण होगा, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं सरकार उनकी होगी। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, हम लोगों का खुद का शासन, रूल बाय द पीपल। रिपब्लिक, यहाँ का जो हेड है वो इलेक्टेड होगा। जिस देश का हेड इलेक्टेड होता है उसको हम रिपब्लिक स्टेट बोलते हैं। और अल्टीमेटली जो सोवरेनिटी, जो पावर वेस्टेड है, वो लोगों में होती है, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। हमारे देश का जो हेड है वो भी जो है वो इलेक्टेड होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, न्याय की बात करते हैं, सामाजिक जो है, आर्थिक है, राजनीतिक है, और फिर इसमें इक्वलिटी की बात करते हैं, हम बिलीफ की बात करते हैं, हम फेथ की बात करते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं संविधान में मेंशन है। उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, यह भी संविधान में मेंशन है। और उसके बाद हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनैक्टमेंट, इसको लागू करना, टू गिव आवर सेल्व्स। ये जो बातें जो इसमें लिखी हुई हैं कि जब संविधान का जो लागू करने की बात हुई थी, तो संविधान में बहुत सारी मतलब डिबेट हुई थी। उस डिबेट के अंदर क्या था कि somebody told के ये जो संविधान को हम लागू करेंगे, हम राम के नाम पे करेंगे या अल्लाह के नाम पे करेंगे। तो एक कंसेंसस वहाँ बन गया था कि भाई ये जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो ये जो संविधान जो खुद को मतलब कि किसको समर्पित करना है, वो लोगों को ही समर्पित करें। इसमें जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बातें मैंने बताई आपको, ये जानना बहुत जरूरी था। It was very important to know what is the constitution, what is the preamble, what is the spirit of the constitution। ये थोड़े से important topic थे। उसके बाद हम चलिए इसके historical जो perspective है वहाँ चलते हैं। तो the idea of the constituent assembly first time given by the M.N. Roy in 1935। ये कम्युनिस्ट थे, he was a communist। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो
आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया था वो एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था 1935 के अंदर, 34 के अंदर। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1935. Jawaharlal Nehru, on behalf of the INC, Indian National Congress, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा और अटल जो फ्रेंचाइज है उसके बिहाफ पे इलेक्शन जो होगा उस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वो बनाई जाएगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस डिमांड एज अगस्त ऑफर इन 1940। इसको अगस्त ऑफर बोलते हैं जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। एंड इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान का और जो इंडिया का, भारत का जो है अलग अलग संविधान जो है वो बनाया जाए। तो मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। आफ्टर दैट द कैबिनेट मिशन कंसिस्टिंग लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर अराइव्ड इन इंडिया ऑन मार्च 24, 1946। इसके बाद एक कैबिनेट मिशन आया जिसके अंदर ये 3 आदमी थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। तो इन्होंने भारत के सामने ये भारत के नेताओं के सामने बात रखी थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैसे होगा, उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी। उसके बाद देखिए composition of the constituent assembly. The constituent assembly was constituted in November 46। ये नवंबर 46 में बनाई गई थी। सीट टू बी अलोकेट, ये जो सीटें हैं कहाँ एलोकेटेड होंगी, मुस्लिम्स प्लस सिख्स प्लस जनरल। जो मुस्लिम और सिख के लिए होंगे कम्युनिटी के लिए, प्लस जनरल वो अदर जो कम्युनिटीज बच जाएंगी उनके लिए। तो ये जो कैबिनेट मिशन आया था उसने ये डिसाइड किया था। इनिशियली द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज 389। ये मैंने बताया कि जो मुस्लिम लीग थी उसने रिजेक्ट कर दिया था, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए जो सीटें उन्होंने निर्धारित की थी वो थी 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। आफ्टर पार्टीशन सम ऑफ द मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान एंड द नंबर केम डाउन 299। जब पार्टीशन हो गया तो वो जो पाकिस्तान के जो हमारा जो उस टाइम तो पाकिस्तान हमारा ही पार्ट था, तो वो जो कुछ सीटें जो पाकिस्तान के पास थी वो वहां चलेगी, तो उसका नंबर जो है रिड्यूस होकर 299 हो गया। आउट ऑफ दिस 229 229 वर फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड द 70 वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो एरिया था उसकी जो सीटें थी वो 229 रह गई थी, और जो 70 जो प्रिंसली स्टेट थे, जो रजवाड़े थे, जैसे कि पटियाला है या जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ की रियासत है, ये प्रिंसली स्टेट थे सारे के सारे, इनकी 70 सीट्स थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। Muslim League boycotted the meeting, so the meeting was attended by only 211 members। मतलब मुस्लिम जो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, मुस्लिम लीग ने इसको बायकॉट कर दिया था और उसमें 211 मेंबर्स थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर जो टेम्परेरी थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, इसके जो चेयरमैन थे। लेकिन लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president and the vice presidents were हरेंद्र कुमार मुखर्जी, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णामाचारी। ये दो जो थे आदमी जो मेंबर्स थे, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। एंड B.N. Rao was the constitutional advisor। On December 30, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution। 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लेकर के आए थे। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी आर्टिकल्स, कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाएगा सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, वो सारा का सारा जो है वो डिटेल जो थी, इट वाज गिवन बाय द जवाहरलाल नेहरू इन हिज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट इज द एलोकेशन ऑफ द सीट्स। तो उस टाइम जो सीटों का जो एलोकेशन हुआ था वो क्या था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस उसको 292 सीट्स दी गई थी, प्रिंसली स्टेट 93, चीफ कमिश्नर्स 4,
तो ये टोटल जो बनता था 389। मैंने बताया कि जब पाकिस्तान जो डिवीजन हुआ था हिंदुस्तान का, तो पाकिस्तान में चले गए तो वो सीट रिड्यूस होकर 299 होगी। उसके बाद देखिए रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो रिजल्ट आया था, इलेक्शन हुआ था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी कि भाई ये जो इलेक्शंस होगा, इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन द अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस, लेकिन ये हुआ नहीं था। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के जो है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इसमें हुआ था। इसमें कांग्रेस के जो है 208 सीट थी, मुस्लिम लीग की 73 थी, यूनियनिस्ट पार्टी 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, कृष्ण प्रजा पार्टी 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, सिख 1, नॉन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी 1, इंडिपेंडेंट्स 8। ये जो टोटल थे ये 296 ये जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे इलेक्टेड होके। उसके बाद देखिए कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिंदूज 163, मुस्लिम 80, शेड्यूल कास्ट, आवाज नहीं आ रही आगे, हेलो, इंडियन क्रिश्चियन 6, बैकवर्ड ट्राइब 6, सिक्स 4, एंग्लो इंडियंस 3, पारसीज 3, 296। उसके बाद देखिए स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मद्रास 49, बॉम्बे 21, वेस्ट बंगाल 19, यूनाइटेड प्रोविंसेस 55, ईस्ट पंजाब 12। ईस्ट पंजाब मतलब कि एक पंजाब हमारा पाकिस्तान में भी है और एक पंजाब हिंदुस्तान में भी है, तो हमारे वाले को ईस्ट पंजाब बोलते हैं। तो बिहार 36, सीपी एंड बिहार 17, आसाम 8, उड़ीसा 9, दिल्ली 1, अजमेर मेरवाड़ा 1, कुर्ग 1। उसके बाद देखिए इंडियन प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन से थे, अलवर की सीट एक, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कोचीन, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कोल्हापुर, कोटा, मैसूर, मयूरभंज, पटियाला, रेवा, त्रावणकोर, उदयपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, खासी स्टेट्स ग्रुप, यूपी स्टेट ग्रुप, ईस्टर्न राजपूताना स्टेट ग्रुप, सेंट्रल इंडिया स्टेट्स ग्रुप इंक्लूडिंग बुंदेलखंड एंड मालवा, वेस्टर्न इंडिया स्टेट्स ग्रुप, गुजरात स्टेट ग्रुप्स, डेक्कन एंड मद्रास स्टेट ग्रुप्स, पंजाब स्टेट ग्रुप्स, ईस्टर्न स्टेट ग्रुप 1, ईस्टर्न स्टेट ग्रुप 2, रेजिड्यूरी स्टेट्स, ये सारा का सारा जो प्रिंसली स्टेट्स, इनको सीट एलोकेटेड की गई थी। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, हमारा जो 1947 में जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें क्या चेंजेस किए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी। द असेंबली वाज मेड ए फुल सोवरन बॉडी। सोवरन बॉडी का मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिपेंडेंटली वो काम करेंगे। द असेंबली आल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी, 2 टास्क वर गिवन टू द असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जीवी मावलंकर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजेंद्र प्रसाद। देखिए असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको 2 काम की जो जिम्मेदारी दी गई थी। फर्स्ट वन, इट विल वर्क एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, और जब लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होगी इट विल बी चेयर्ड बाय द जीवी मावलंकर एज ए स्पीकर और चेयरमैन, and when it will work as constituent assembly it will be chaired by the Dr. Rajendra Prasad। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299 as the against 389। the strength of the Indian provinces was the reduced from 296 to 229 and princely states from the 93 to 70। तो ये जो डिवीजन हुआ था, डिवीजन के बाद जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो इफेक्टेड हुई थी। जो 296 तो नंबर था वो 229 पे आ गया और प्रिंसली स्टेट्स का था 93 से 70 पे आ गया। उसके बाद देखिए अदर फंक्शंस क्या थे, उसको संविधान का निर्माण तो करना ही था, उसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस जो है उनको दिए गए थे करने के लिए। इट रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। हम जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट थे, उन्होंने इसको जो है मतलब कि उन्होंने रेटिफाइड किया कि भाई हम उसका जो कॉमनवेल्थ का मेंबर कंटिन्यू रहेंगे। ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। It adopted the national anthem on January 24, 1950, and it also adopted the national song on January 24, 1950. It elected Constituent Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950। मैंने देखिए ऑलरेडी आपको बताया था कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 2 तरीके से काम करेगी। एक तो एज ए पार्लियामेंट,
जिसको हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, उसके जो अध्यक्ष होंगे, जब काम करेगी तो जी मावलंकर होंगे। और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या था, उनका जो इलेक्शन जो किया था, फर्स्ट पार्लियामेंट थी, तो फर्स्ट पार्लियामेंट जब उसके अध्यक्ष बने थे जो जीवी मावलंकर थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट जो है उन्होंने चुन लिया था, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है, तो उन्होंने उसको चुन लिया था। उसके बाद देखिए, टाइम टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years। इसके टोटल 11 सेशन हुए थे। द कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान निर्माण करने वाले थे, उन्होंने लगभग 60 जो देश हैं उनके जो संविधानों का उसका जो रिव्यू किया था, उनको देखा था, स्टडी किया था। एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड 114 days, 114 दिन के लिए जो कंसीडर हुआ था। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू 64 लाख। उस टाइम 64 लाख खर्च हुए थे संविधान निर्माण में। ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल मीटिंग। जो संविधान की जो संविधान सभा की जो फाइनल मीटिंग थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद देखिए, सेशन जो 11 थे वो कब से कब तक चले थे। फर्स्ट सेशन इट वाज हेल्ड फ्रॉम 9 दिसंबर टू 23 दिसंबर 1946। सेकंड जो 20 थे 25 जनवरी 1947। थर्ड 28 अप्रैल से 2 मई 1947। जो फोर्थ था 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947। फिफ्थ 14 अगस्त टू 30 अगस्त 1947। सिक्स्थ 27 जनवरी 1948। सेवंथ 4 नवंबर से 1948 से 8 जनवरी 1949। एट्थ 16 मई 16 जून 1949। नाइन्थ 30 जुलाई 18 सितंबर 1949। 10th सेशन जो हुआ था इसका 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11th सेशन 14 से 26 नवंबर 1949। ये इसके टोटल। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसकी बहुत सारी कमेटीज थी, कुछ मेजर कमेटीज थी और कुछ माइनर कमेटीज थी। इनमें से जो मेजर जो कमेटीज थी वो 8 थी। वो कौन कौन सी थी? यूनियन पावर कमेटीज, इट वाज चेयर्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, it was very important committee, Dr. B.R. Ambedkar. Advisory committee on the fundamentalized minorities and tribal excluded areas, Sardar Patel. This committee had the following 5 subcommittees: Fundamental Rights Subcommittee, J.B. Kripalani; Minorities Subcommittee, H.C. Mukherjee; Northeast Frontier Tribal Areas and Assam Excluded, Partially Excluded Area Subcommittee, Gopinath Bardoli; Excluded and Partially Excluded Areas other than those in Assam Subcommittee, A.V. Thakur; Northwest Frontier Tribal Area Subcommittee; Rules of Procedure Committee, Dr. Rajendra Prasad; State Committee for Negotiating with States, Jawaharlal Nehru; Steering Committee, Dr. Rajendra Prasad। ये मेजर कमेटीज। यार उसके बाद है माइनर्स कमेटी। तो इन सब कमेटीज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटीज इट वाज ड्राफ्ट कमेटी। तभी तो हम बोलते हैं कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उन्होंने संविधान का निर्माण किया है। तो इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी सेट अप अगस्त 29, 1947। इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। इसके 7 मेंबर थे। तो इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके दूसरे मेंबर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। He replaced B.L. Mitra who resigned due to ill health। पहले जो मेंबर थे B.L. मित्र थे, लेकिन वो उनकी हेल्थ की वजह से एन माधव राव इसके मेंबर बनाए गए। उसके बाद टी कृष्णमाचारी, ही रिप्लेस डी.पी. खेतान, डाइड इन 1948। डी.पी. खेतान जो है उनकी डेथ की वजह से टी कृष्णमाचारी आए थे। इट प्रिपेयर्ड फर्स्ट ड्राफ्ट इन फरवरी 1948। जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इसने जो अपना पहला ड्राफ्ट बनाया था फरवरी 1948 में। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट। जब ये ड्राफ्ट बना लिया गया था तो लोकल जो जितने भी देश के न्यूज़पेपर्स थे उसमें इसको पब्लिश किया गया था और लोगों को 8 महीने का समय दिया गया था अपने आइडियाज देने के लिए। तो उसके बाद कमेटी प्रिपेयर्ड सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक less 6 months to prepare its draft. In all, it sat only 141 days.
तो कमेटी ने 6 महीने के अंदर अंदर इस ड्राफ्ट को जो है फाइनल कर लिया था। इसकी जो मीटिंग हुई थी वो लगभग 147 के लगभग थी। उसके बाद देखिए इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft in the Constituent Assembly on November 4, 1948. इसको फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो असेंबली थी उसमें इसको रीड किया था। ही रेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम इन November 4, 1948. The second reading was started on November 15, 1948 and ended on the October 17, 1949. तो सेकंड जो रीडिंग थी इसकी जब उसमें पेश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ड्राफ्ट पेश किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, तो उसमें ड्यूरिंग दिस स्टेज 7,653 amendments were proposed and 2,473 were actually discussed. 7,653 अमेंडमेंट्स आए थे उसमें, उनमें से डिस्कशन हुआ था 2,473 पे। The third reading was started on November 14, 1949. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर moved a motion. ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है। तो जो थर्ड था वो फाइनल था, जो इसका रीडिंग थी इसकी थर्ड। और जब इस मोशन को लाया गया इसको पास करने के लिए संविधान को, इसको बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, इस नाम से इसको लेकर के आया गया था। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एंड पास ऑन November 26, 1949 and received the signature of the members and president. Out of a total 299 members of the assembly, only 284 were actually present on that day. 299 में से 284 जो मेंबर्स प्रेजेंट थे और उन लोगों ने उस पे साइन किए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 contained a preamble, 395 articles, 22 parts and 8 schedules. जब इसको पास किया गया था संविधान को, उसमें ओरिजिनली 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 जो इसकी शेड्यूल्स थी। यूजुअली यहाँ एक बात आती है कि भाई 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान लागू हुआ था, कई जगह ये चीज लिखी होती है और यूजुअली हम सभी जानते हैं कि 26 जो जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो माइनर सा पार्ट था जब इसको पास किया गया था, उसके कुछ 11, 12, 13 कुछ आर्टिकल्स थे, वो ऑटोमेटिकली ही इम्प्लीमेंट हो गए थे November 26, 1949 को, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was implemented 26 January 1950. अब देखिए कि संविधान को इसकी आलोचना भी की जाती है। बहुत सारे स्कॉलर्स है, विद्वान है, कहते हैं कि भाई इट वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्योंकि ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये अडल्ट फ्रेंचाइज के बिहाफ पे जो है इसको इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम इलेक्ट करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ था, तो इनडायरेक्ट के माध्यम से हुआ था। तो इसको मानते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूएंट। बहुत सारे विद्वान ये बात कहते हैं। नॉट ए सॉवरन बॉडी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सॉवरन बॉडी बिकॉज सिंस इट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। इसको कहते हैं कि भाई सॉवरन नहीं थी ये, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने इसको क्रिएट किया था। हाउएवर इट वर्क एज ए फुली इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन बॉडी। लेकिन ये वैसे ही लगता है ये पूरी सॉवरन बॉडी थी। इवन के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि आप कोई भी कानून इसमें पास कर सकते हैं, इवन कि आप चाहें तो जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये सॉवरन बॉडी थी। ये बेसलेस है इसका, जो हम कहेंगे कि भाई ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया था। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारे कहते हैं कि भाई इसमें जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, इसमें मतलब 6 महीने का टाइम इसमें ज़्यादा लगा था। लेकिन एज वी नो द इंडियन कल्चर, आवर सोसाइटी, आवर कास्ट सिस्टम, लैंग्वेज, ये कहते हैं कि भाई हर 14 कोस पे जो है पानी बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम मतलब कि सच ए बिग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सच बिग पॉपुलेशन। जो इतनी डाइवर्सिटी हमारी पॉपुलेशन के अंदर है, कल्चरल है, सोशल है, लैंग्वेज रिलेटेड है और बहुत सारे डिफरेंसेस, तो इसमें टाइम लगना था। तो इसलिए इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा था। अगला है डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। इस बोलते हैं कि भाई इसमें जो डोमिनेशन था, क्योंकि कांग्रेस के जो मेंबर्स थे इसके बहुत ज़्यादा थे इसके मेंबर्स, इसको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके बाद बोलते हैं इसमें लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेशन, इसमें वकील और जो राजनेता थे वो बहुत ज़्यादा थे।
फिर अगला इसमें बोलते हैं कि भाई हिंदू जो है डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, हिंदू इसमें मेजोरिटी में थे। ये तो सारा जो है क्रिटिसिज्म हमने बताया आपको। उसके बाद देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बताना चाहूँगा। एलिफेंट वाज द अडॉप्टेड एज ए सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान जो सभा थी उसने जो हाथी है उसको एज ए सील जो है उसको उसको यूज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद करने के लिए। एंड सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। उसके बाद देखिए एच वी आर अयंगर वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस एन मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन जो चीफ ड्राफ्ट्समैन भी एक बनाए गए थे वो थे एस एन मुखर्जी। उसके बाद देखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने इसको अपने हाथ से इटैलिक शैली में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उसके बाद देखिए ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन। पश्चिम बंगाल से शांति निकेतन से जो ओरिजिनल जो हमारा संविधान है उसको जो ब्यूटीफाई किया गया, उसको सुंदर बनाया गया है, उसको डेकोरेटेड किया गया, वो किया था नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा। उसके बाद द कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य। इसका जो हिंदी वर्जन है जो लिखा था वो किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। and elegantly illuminated and decorated by the same नंदलाल बोस। उसमें जो इंग्लिश वर्जन था उसमें दो कैंडिडेट थे, दो बंदे थे, जो नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा। उन्होंने इसको डेकोरेटेड किया था, ब्यूटीफाइड किया था, और हिंदी वर्जन था उसको सिर्फ नंदलाल बोस ने जो है इसको ब्यूटीफाई किया था। तो ये मैंने आपके सामने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बारे में कुछ बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बातें पता लगी होंगी। तो इसी के साथ मैं ये मंजीत जी का थैंक्स करूंगा कि ये मेरा जो लेक्चर ओवर हो गया है। कोई किसी की क्वेरीज है तो जरूर पूछिए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर अमित सर। सर ये पार्टिसिपेंट्स अपने सारे जो क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए। तो एक क्वेश्चन है सर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, जीजीएस कॉलेज संगेड़ा। उन्होंने पूछा कि जो हमारा प्रॉब्लम बना है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो स्पिरिट थी वो आज तक हम अचीव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक गैप्स आर एक्सपेंडिंग डे बाय डे। देखिए मैं यही बात कहना चाहूंगा, केवल मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि देखिए किसी भी देश का जो संविधान है वो कितना भी अच्छा हो, जब तक उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं है वो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता। अगर किसी देश का संविधान अच्छा नहीं है और उसको लागू करने वाले आदमी अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटर्स अच्छे हैं, तो वही संविधान अच्छा साबित होगा। मुझे उम्मीद है ये जो स्टेटमेंट दी थी वुड्रो विल्सन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने ये बात कही थी। आप ये, मुझे लगता है कि आपका जो सवाल का जो जवाब है इसमें आपको मिल गया होगा। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सर एक सवाल आया है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखना है किसी ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, सो वो कहाँ है हमारा? देखिए वो उसके लिए तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है। और अभी तो सुनने में आया था कहीं वो कहीं मिसप्लेस हो गया, कुछ ऐसी न्यूज आई थी, अब वो रूमर्स थी या कुछ था, ये मुझे नहीं पता है। अदरवाइज आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखना है तो पार्लियामेंट में जा सकते हैं, तो आपको वहाँ मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी की कॉपी भी है उसकी, वहाँ इंग्लिश में भी कॉपी है। हाँ जी सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी स्टूडेंट ने कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको कैसे मर्ज किया गया और इनका रोल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या रहा? देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनाई गई थी उसमें कुछ तो बंदे नॉमिनेटेड थे। जो नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट्स थे, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो प्रिंसली स्टेट्स थे।
बाकी जो अदर पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान था, वहां से जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड होकर के आए थे, और कुछ ने तो अपनी विल के अकॉर्डिंग विलिंगली वो उन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया था भारत के अंदर। लेकिन दो तीन जो रियासतें थी, जैसे जम्मू कश्मीर है जिसपे बड़ा बवाल होता है भी भाई, और फिर जूनागढ़ की है, फिर एक वो हैदराबाद की थी, इनमें काफी प्रॉब्लम आई थी। और जो हमारे गृह मंत्री थे उस टाइम, डॉक्टर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो काफी सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने क्या है कि बड़ी मतलब कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से, कमिटमेंट से जो है जूनागढ़ को भी शामिल किया, और हैदराबाद का जो क्या कहते हैं उसको, जो राजा था, वियाम था उसको बोलते हैं, मुस्लिम जो शासक था वहाँ, उसने मना कर दिया था, वो पाकिस्तान के साथ मिलने वाला था, लेकिन वहाँ उन्होंने आर्मी भेज करके उसको जो है अपने साथ। इसमें एक इंटरेस्टिंग बड़े फैक्ट हैं कि वो उनसे बात करी थी पटेल साहब ने कि भाई आप हिंदुस्तान में मिल जाइए, पाकिस्तान में कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये सारा एरिया तो हमारा हिंदुस्तान का ही है। तो उन्होंने मना कर दिया था। जो आर्मी भेजी थी, सुनने में ये बात आई है, तो वहाँ जो रात को जो है गधे भेज दिए थे, और उनके साथ ना लाइट लगा दी गई थी। तो जूनागढ़ का जो राजा था उसने सोचा कि वो बहुत बड़ी आर्मी आ गई तो ये भी बात वहाँ हुई थी। फिर उसके बाद जम्मू और कश्मीर की जो रियासत थी, तो वहाँ का जो राजा था, राजा जय सिंह जो थे, तो उन्होंने भी मना कर दिया था, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन वहाँ फिर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो वहाँ उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि वो डर गए भाई सारे जम्मू कश्मीर पे कब्जा हो जाएगा, तो फिर भारत से उन्होंने बात की। तो फिर उसके बाद एक हस्ताक्षर हुए थे, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें एक्सटर्नल था, कम्युनिकेशन था, और एक और था वो जो क्या बोलते हैं डिफेंस था, वो हिंदुस्तान के पास होगा, बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो जम्मू कश्मीर के पास रहेंगे। उनका एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट पे ही वो जो है हिंदुस्तान वो इंटरफेयर कर सकता था जम्मू कश्मीर में। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरन कौर का, what is mean by directive principles in constitution? ये वेरी गुड, अच्छा सवाल है ये स्टूडेंट के लिए। डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में गए हैं। इन आर्टिकल्स के अंदर क्या है कि राज्य अपनी जो नीति बनाएगा, समाज से रिलेटेड आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। उसमें लिखा हुआ है कि भाई महिलाओं के लिए स्पेशल लॉ बनाए जाएंगे, और जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए भी होगा, शेड्यूल कास्ट के लिए भी होगा, पंचायतों के लिए भी होगा। तो वो डायरेक्टिव्स हैं कि भाई आपको इनको ध्यान में रखना है, तब आप अपने स्टेट की पॉलिसी बनाएंगे। तो इसीलिए इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं, और पूरा देश उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी जो है पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। उससे बाहर वो नहीं जा सकते, अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा, नल एंड वॉइड घोषित कर देगा उसको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हरजीत सिंह का है, द बॉयकॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय मुस्लिम वाज फेयर और नॉट? देखिए, ये तो बड़े डिबेट का टॉपिक है कि उस टाइम क्या हालात रहे थे कि मुस्लिम अलग क्यों रहना चाहते थे, और उन्होंने क्यों पाकिस्तान की डिमांड करी। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन ये तो गलत ही था कि भाई बॉयकॉट किया था, क्योंकि उसमें क्रिटिसिज्म में एक पॉइंट था कि ये जो हिंदू जो है इसमें डोमिनेशन था, ये विद्वान ये बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये डिबेट का टॉपिक है, इस पे हम इतना आसानी से जवाब नहीं दे सकते कि भाई मुस्लिमों ने ऐसा क्यों किया, पाकिस्तान के लिए क्यों उन्होंने कहा। फिर उन्होंने तो बायकॉट का रीजन बेसिकली कहें तो इन्होंने यही था कि भाई इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है हिंदू डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मंजू यादव मैम का, उन्होंने पूछा कि जो संविधान में इतना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है, तो अमेंडमेंट्स आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली? देखिए, समाज में चेंजेस आ रहे हैं, वी आर फेसिंग सो मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। जैसे हम 10 साल पहले मोबाइल कोई और यूज करते थे, आज हम 4G यूज कर रहे हैं, अगले 2-3 साल में हम वी विल बी कैपेबल टू हैव 5G एंड 7G मोबाइल फोन्स।
तो अगर वो नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो क्या है कि समाज जो देश का जो सिनेरियो है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो डे बाय डे चेंजेस हो रहा है। तो संविधान में भी हमें जरूरत पड़ेगी कि भाई उसके मुताबिक उसमें हम चेंजेस कर दें। लेकिन यहाँ ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि संविधान की जो स्पिरिट है हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। संविधान में जो ओरिजिनलिटी है उसकी ओरिजिनलिटी को हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन। डॉक्टर सीमा परिहार ने सवाल किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस में कुछ शामिल किया गया, जैसे धर्मशास्त्र, इंडियन स्मृति धर्मशास्त्र जो है वो, उनसे कुछ रूल्स लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उनका सवाल है कि वो किस तरीके से लिए गए हैं। सीमा पारीकर जी का सवाल है। क्या पुरानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन शामिल किया गया है जैसे स्मृति धर्मशास्त्र? देखिए, कोई भी अगर धार्मिक, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो मैंने स्टार्टिंग में जब लेक्चर में अपना डिलीवर कर रहा था तो उसमें एक शब्द आया था जिसको बोलते हैं हम सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब ये है कि स्टेट है, स्टेट मतलब कि सरकार, गवर्नमेंट, कंट्री हर एक धर्म को सपोर्ट करेगी, धर्म का प्रचार नहीं करेगी। अगर हमने मान लिया किसी स्मृति से, धर्म शास्त्र से कुछ ले लिया तो फिर हमारे पास क्या है, कुरान भी है, पारसी कुछ कहेंगे, मुस्लिम कुछ कहेंगे, दूसरे धर्म वाले कुछ कहेंगे, लेकिन जो चीजें इसमें ली गई हैं, जो डाली गई हैं, उसमें सेकुलर जो वर्ड है उसको एक तरीके से स्प्रिट के तौर पे लिया गया है। लेकिन अच्छी बातें शामिल की जा सकती हैं उसको सेकुलर बना करके, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन है हरजीत सिंह का क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू डोमिनेशन ज्यादा है, मुस्लिम माइनॉरिटीज एंड डेमोक्रेटिक सेटअप भी क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक सेटअप किससे हो सकता है? जी क्या सवाल है, मैं समझा नहीं। सवाल है कि जो माइनॉरिटी है इनमें इस तरीके से जो हिंदू मेजोरिटी भी है, तो अब देश आजाद हो चुका है, तो किस तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप बन रहा है या बन सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो है क्वालिटी एजुकेशन। अगर हम अभी क्वालिटी एजुकेशन शुरू करेंगे, अब क्वालिटी एजुकेशन में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, अगर उसमें क्वालिटी एजुकेशन हम लागू देने में लोगों को, बच्चों को कामयाब हो जाते हैं, हाँ, तो क्या होगा कि अगले 10 या 15 साल के अंदर अंदर वी विल बी कैपेबल टू हैव प्योर डेमोक्रेसी। कोई मुस्लिम का नाम नहीं रहेगा, कोई हिंदू का नाम नहीं रहेगा, हर जगह उनका जो है पार्टिसिपेशन होगा, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे कास्ट बेसिस है, चाहे गरीब है। तो क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है हमारे देश के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लागू करने में अब आप देखिए, बहुत देश के अंदर मतलब ऐसे स्कूल हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि यूपी के अंदर है या हरियाणा में या कई एरियाज के अंदर वहाँ पूरे टीचर्स नहीं होते, लेबोरेटरीज नहीं होती, और इवन के आप अगर सर्वे करेंगे, अगर आप डाटा देखते हैं तो डाटा के अंदर ही निकल के आता है लड़कियों के लिए वॉशरूम तक नहीं है, ठीक है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है एक लोगों के लिए या आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक 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 अच्छे अंडरस्टैंडिंग बनाएगी, समझेगी उन चीजों की, ह्यूमैनिटी को समझना है, हमारे सोशल पर्सपेक्टिव को समझना है, हमारे देश के इन्वायरमेंट को समझना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वालिटी एजुकेशन उनको दी जाए। नेक्स्ट वन इज सर, नेक्स्ट वन है हम और रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल मैम ने सवाल किया है, present scenario Indian constitution need to some urgent amendments to political exploitations. Please give your points. देखिए मैडम जी, तो ये जरूरी है कि अगर हम संविधान में कोई अमेंडमेंट करते हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अब आरटीआई को लागू किया गया था तो वो पॉलिटिकल कमिटमेंट से हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट हम करेंगे
टू कर्ब पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। तो उसके लिए पॉलिटिशियंस की, जो हमारे एमएलएज हैं, जो हमारे एमपीज हमारे जो हैं, तो उनकी कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी बहुत बारी। और वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। आपको पता ही होगा कि मोर देन 35% जो एमपीज हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक एग्जांपल यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में, हेलो, इन इन 1964 जब एक कमेटी बनाई गई थी, जो फर्स्ट एआरसी बनाया गया था, उसमें मोरारजी देसाई उसके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने उसी टाइम ये डिमांड की थी कि हमारे देश में एक पावरफुल लोकपाल की जरूरत है। वी नीड ए पावरफुल लोकपाल, और उसके दायरे के अंदर प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, वो सारे उसके दायरे में आएंगे। और ये जो डिमांड है 1964 से है। अगर हम स्ट्रॉन्ग लोकपाल ही बना देते हैं, जिस तरीके की जो उस टाइम रिकमेंडेशंस हुई थी, तो पॉलिटिकल जो हमारा जो क्रिमिनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो क्रिमिनलाइजेशन हो गया हमारे जो पॉलिटिक्स का, हम उसको 100% हम उसको कर्ब कर सकते हैं। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। वो उसको पास, वैसे तो पास कर दिया है लोकपाल को, लेकिन हमारा लोकपाल इतना मतलब पावरफुल नहीं है, उसके पास कोई पावर्स नहीं है। अगर पावर के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करते, उसको फुल एम्पावरमेंट, उसको सारी की सारी शक्तियां हम उसको दे देते, प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आता, जैसे कि स्वीडन के अंदर है, जैसे कि वहाँ हमारे ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर कमिश्नर है, और डेनमार्क है, नॉर्वे है, उनके अंदर जो सिस्टम है, अब उसके साथ ही हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करते, तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ लोकपाल आप लागू कर दीजिए, सारी की सारी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि प्रेजेंट जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, प्रेजेंट जो हमारे एमपीज हैं, वो उसके लिए कमिटेड हों, कभी देश के लिए हम कुछ करें। थैंक यू सर। सर एक अगला क्वेश्चन है, गुरपाल सिंह ने पूछा चंडीगढ़ से कि इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, इफ एनी स्टेट वांट टू सेपरेट फ्रॉम आवर रिपब्लिक, इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अगर कोई भी स्टेट हमारे से अलग होना चाहे तो हम कैसे होने देंगे? अगर जम्मू कश्मीर कहेगा कि हम अलग होना चाहते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। जैसे रिपब्लिक की आपने बात करी, रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब दो मीनिंग मैंने आपको बताए थे। रिपब्लिक का मतलब है कि जिस देश का हेड इलेक्टेड होता है वो रिपब्लिक होता है, और अल्टीमेटली जो पावर्स है वो वेस्टेड इन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। ऐसे थोड़ी कोई भी अलग थोड़ी हो जाएगा। हमारे पास वो पावर्स हैं, आर्टिकल 365 है हमारे पास, ये 352 है, 360 है, 356 है। देखो 356 में आप देखिए, राष्ट्रपति शासन जो है क्यों लगाया जाता है? सबसे पहले पंजाब में, सबसे ज्यादा पंजाब में लगाया गया था, हालांकि इसका पॉलिटिकल यूज होता है। और गवर्नर के पास ये पावर होती है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, if state government is failed to work according constitutional spirit, then governor can recommend to impose the president rule in that particular state to the center government। ये 356 है। और 365 के अंदर क्या है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये जो आर्टिकल्स है, इमरजेंसी पावर्स मैंने आपको बताई, 352 है और 356 है, 360 एंड 365 है। ये पूरे देश को जोड़ने के लिए है। ये नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हरजीत सिंह का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है अगर होगी तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, बट इंडियन गवर्नमेंट का आज तक कोई भी ऐसा बजट नहीं आया है जिससे एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिलेबस को बिल्डअप किया जा सके। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ तक स्टैंड करता है? देखिए मैंने एक बात कही थी कि आप बंद करना एक बार मजीद जी। मैंने एक बात कही थी कि भाई संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं है, वो संविधान अच्छा साबित हो ही नहीं सकता। हमारा संविधान वर्ल्ड का सबसे अच्छा संविधान है, उसमें हर चीज की डायरेक्शन है, हर मैटर को उसमें डिस्कस किया गया है। अगर उसको लागू करने वाले अच्छे आदमी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो ये प्रधानमंत्री जी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि भाई जब वो सत्ता में आएंगे तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियन उनके खिलाफ एक्शन होगा। वो कहाँ तक हुआ वो मुझे नहीं पता है। तो वो जरूरी है कि इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन है? वो दीज आर द
MPs, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स, ये जब भी इनकी अपॉइंटमेंट होती है, जब भी MP को MP बना मंत्री बनता है या MP बनता है, एमपीशिप होती है, तो उसको संविधान की शपथ दिलाई जाती है, एक सेरेमनी होती है पूरी की पूरी। इवन के पुलिस डिपार्टमेंट का कोई अफसर या कांस्टेबल भी जो है नौकरी ज्वाइन करता है, तो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान बिलीव करूंगा। वही संविधान की शपथ लेकर के वो लोग करप्शन करते हैं, तो संविधान की तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो हमारे लिए जरूरी है कि इन लोगों में, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, कि सरकार कोशिश करे कि क्वालिटी एजुकेशन पे मैक्सिमम ध्यान दे। कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, अच्छी लेबोरेटरीज वगैरह नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज का हाल देखिए, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ऊपर कितना भारी कर्जा है। हमारे देश का हायर एजुकेशन का जो खर्चा है, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी का उतना खर्चा के लिया, 38,000 करोड़ रुपए। तो क्वालिटी एजुकेशन हम कहाँ से देंगे? तो ये डिपेंड करता है कि हमारे देश के जो संविधान के इम्प्लीमेंटर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आया है कि जो स्टेट और सेंटर के रिलेशन है, ऑटोनॉमी सबसे ज्यादा सोवरियन जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इनका सवाल आज की करंट सिचुएशन को लेके है कि जितने भी कोविड-19 के थ्रू माइग्रेट किए गए ऑल ओवर इंडिया में, वो स्टेट उन पर अपना अपना अधिकार जमा रहा है। तो एक्चुअली वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर। इस कॉन्फ्लिक्ट पर आप देखिए, हमारे यहाँ एक राजस्थान में जो काम चल रहा है इस टाइम, और जो मध्य प्रदेश में जो हुआ था, फिर महाराष्ट्र में जो हुआ था, आप इन चीजों को समझिए कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दूसरी पार्टी की सत्ता है और स्टेट गवर्नमेंट में फिर दूसरी पार्टी की सत्ता है, तो वहाँ क्या करते हैं कि लोगों का ध्यान कम होता है, अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उनका ध्यान ज्यादा होता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं पूरी ईमानदारी के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ मिलजुल के काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो तीनों लिस्ट के अंदर मतलब के डिवीजन ऑफ पावर्स हैं। 97 जो सब्जेक्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है। फिर जो कुछ 64 के लगभग हैं, आई थिंक, मुझे नंबर पूरा याद नहीं है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट उसमें कानून बना सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्जेक्ट लेना है और सेंटर पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो राज्यसभा के पास पावर है। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, आर्टिकल 312 या आर्टिकल, हाँ एक्चुअली यही है। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा स्टेट गवर्नमेंट का वो सब्जेक्ट निकाल करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, उसमें डाल सकती है, उसमें कानून बना सकती है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा ही हो जाए तो राज्यसभा के पास वो पावर है, वो हो सकता है काम। लेकिन सवाल क्या है, सवाल है एथिकल वैल्यूज का, सवाल है कमिटमेंट का, सवाल है कि लोगों की सेवा कैसे करनी है। अगर दिल में सेवा भाव नहीं है कि भाई देश के लिए हमें कुछ करना है, तो वो करेगा कैसे? आप देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया, इसका इसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है, या दूसरा और भी जो डेमोक्रेटिक फ्रंट्स हैं, उन्होंने अपना डाटा दिया है, अराउंड 40% जो MPs हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। ठीक है ना? तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो यूपी के अंदर जो एक क्रिमिनल्स की जो बात हुई थी, तो ये जो चीजें हैं, ये बातें हैं सारी की सारी, ये डिपेंड करती हैं कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं। एथिकल वैल्यूज। नेक्स्ट वन है माइग्रेंट्स को लेके। हाँ, माइग्रेंट्स को लेके है कि जो आजकल जो चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को लेके है कि जो आजकल जो चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो जा रहे हैं वो माइग्रेंट्स है। बट all citizens of India, all citizens of India belongs to Indian territory. Within territory of India, we are moving one state to another state. We are calling migrants. Why? It is the यस, आई आवाज? आई एम ऑडिबल?
हाँ, देखिए ये माइग्रेंट्स की, चलो ये तो अगर कोई ऐसी बात करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो है ही है, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, माइग्रेंट्स तो उसको बोलते ही हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बिहार के हैं, पंजाब में भी काम करते हैं, पूरे देश में वो काम करते हैं, माइग्रेंट्स तो चलो बोलते ही हैं, लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। तो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रल जो स्टेट रिलेशंस हैं, वो डिपेंड करता है उनके पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं। वो चाहते तो कुछ भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ना चाह रहा हो कि भाई वो पॉलिटिक आगे इलेक्शन वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, हमें पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली तो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो। देखो एक टर्म यूज कर सकते हैं हम, अगर हम कोई रिसर्च करते हैं या कोई किसी तरीके का कोई ऐसा रिसर्च रिलेटेड काम कर सकते हैं, हम इसको इनको माइग्रेंट्स हम बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आप मतलब कि पब्लिकली आप ये बात करो, है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही। नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है सर कि सिमरन को यहाँ पर ललिता रानी मैम ने भी पर पूछा है, और यहाँ पर ललिता रानी मैम ने भी पर हाँ हाँ दोबारा इसी को क्वेश्चन पूछा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी मैक्सिमम क्राइम रेट इंडिया में क्यों है, रेप केसेस हो रहे हैं, जस्टिस मिलते मिलते 7-8 साल लग जाते हैं। बल्कि मैंने जब वेबिनार स्टार्ट हुआ था तो भी मैंने बताया कि आपने भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में नॉर्दर्न इंडिया के इनजस्टिस को लेकर काम किया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तो मैक्सिमम क्राइम रेट ज्यादा है और इतना डिले होता है हमारा जस्टिस हमें। देखिए सबसे पहले तो मैं बात बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट के जो करीबन 800 जो वैकेंसी खाली है, और जो लोअर कोर्ट्स की जो वैकेंसी है मोर देन 5000 वैकेंसी खाली पड़ी है। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मोर देन 5 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली पड़ी है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की 5 लाख की कमी है, 7 लाख नर्सों की कमी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल में टीचर्स की कमी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? और जो हमारे यहाँ एक नेक्सस है, नेक्सस जो बन गया है पॉलिटिशियंस का, क्रिमिनल्स का और जो बिजनेसमैन का, देखिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें हैं, सारी बातें मेंशन की गई हैं। हमें देश के लिए काम करना है, हर चीज का प्रोविजन है, लेकिन वक्त के हिसाब से जो है जो हमें चेंज होना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया, अगर लोकपाल को आप अच्छे से लागू कर दीजिए, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिकली अपने आप जो है सॉल्व हो जाएंगी। ये जो आपने ये रेप केसेस की बात करी है, पीछे से अभी जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने जो एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि भाई इंडिया के अंदर जो महिलाएं हैं जो अपना सोच समझ के जाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वहां जाके जाएं, तो ये हमारे देश के लिए मतलब इतनी रिस्पेक्ट की बात नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है। अब ये देखिए जो प्रकाश थे, मिस्टर प्रकाश, वहाँ के जो डीजीपी रिटायर्ड हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पिटीशन डाली थी कि जो पुलिस सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, उसके लिए कमीशन बनाया जाए। एक आईपीएस ऑफिसर की जो पोस्टिंग, आईएएस ऑफिसर की, वो कम से कम 3 साल की पोस्टिंग होनी चाहिए, और उसकी ट्रांसफर के लिए कमीशन बनाया जाए। उसकी अगर किसी आईपीएस की एसपी की ट्रांसफर करनी है, 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगी उसकी। अगर उससे पहले ट्रांसफर अगर करनी है तो उस कमीशन की हमें रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। क्या आज तक किसी स्टेट ने वो रिकमेंडेशन को लागू किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन जारी कर दी है, आज से 5-6 साल पहले कर दी थी, या ज्यादा टाइम हो गया, मेरे ख्याल में 10 साल हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। और 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है कि भाई इनको जो है लागू करो। अब कौन सा स्टेट है उसने लागू कर दिया है? अब जो डीजीपी की जो पोस्ट है वो पॉलिटिकल पोस्ट है, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट है वो पॉलिटिकल पोस्ट है। अगर जो उसको लागू करने वाले हैं, जो उसकी अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, जो इनकी जो ब्यूरोक्रेसी की जो अपॉइंटमेंट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, किस बंदे को कहाँ लगाना है, ये पॉलिटिकल सिस्टम पर डिपेंड करता है, चीफ मिनिस्टर पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर डिपेंड करता है। आप आईपीएस की कर दीजिए, उसको प्रोटेक्टेड कर दीजिए, 3 साल के लिए लगाइए आप। अगर उसके डिप्टी कमिश्नर और आईपीएस के एरिया के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए कि भाई आपके एरिया में जो है क्राइम हुआ इस तरीके का, तो आप इसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजिए, क्या आपने इसके लिए क्या किया है, आपने पहले क्या बंदोबस्त किया हुआ था। तो हमारा जो सिस्टम है, मैं पहले कह रहा हूं कि जो हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है, यहाँ ईमानदारी की जरूरत है। यहाँ इलेक्शन कमीशन को स्ट्रांग होना, मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं वो पार्लियामेंट में इलेक्शन के माध्यम से आकर के जो दाखिल ना हो, तो उसके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक ही चीज कर दे इस टाइम तो जो देश पार्लियामेंट है, लोक पावर को स्ट्रॉन्ग करके लागू कर दीजिए। उसके बाद किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, सारी की सारी बातें अपने आप
ठीक हो जाएंगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आ जाएंगे, IAS IPS भी आ जाएंगे, IRS, सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी उसमें आ जाएगी। तो ये जो आपने पूछा कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कितना ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसको उसके जो इम्प्लीमेंटर्स हैं अगर वो सही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा साबित हो ही नहीं सकता। आप कोई भी बुरा कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, उसको लागू करने वाले यूं है कि अपने देश से प्यार करने वाले हैं, हम अपने देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे, उसको बढ़िया बना देंगे उसी कॉन्स्टिट्यूशन को। और उसमें प्रोविजन है आर्टिकल 368, अगर हमें देश में किसी नए अमेंडमेंट की जरूरत है तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट, जब चाहे अमेंडमेंट कर ले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी चीज की। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन था कि जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट, इनमें कोई डिफरेंस है या ये सही चल रही है या नहीं चल रही है? डॉक्टर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इन पार्लियामेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट। अच्छा, देखिए जब हम MPs को चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से, हम वोट डालते हैं, अपनी वोट का हम यूज करते हैं, तो MPs की ये अकाउंटेबिलिटी जो पार्लियामेंट की है, वो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, टुवार्ड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया। और उनकी जो वो ओथ लेते हैं, जो उनको जो उसकी शपथ होती है, जब वो MP बनते हैं सबसे पहले संविधान की शपथ लेते हैं कि भाई संविधान में हम अपनी आस्था रखेंगे, उसमें हम विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे और संविधान के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, संविधान के बिलीफ के अकॉर्डिंग, उसकी स्पिरिट के अकॉर्डिंग। तो अकाउंटेबिलिटी तो संविधान के प्रति भी है और जो अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति भी है, उनकी पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा, ऑपोजिशन सवाल करती है, अगर कोई काम गलत कर देती है सरकार उसकी आलोचना होती है, और अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के प्रति है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, डेमोक्रेसी है, हमने ही पार्लियामेंट को बनाया था, हमने ही संविधान को बनाया था और हमने ही संविधान को अपने ऊपर जो है अडॉप्ट कर लिया था, अर्पित कर लिया था। सर, एक क्वेश्चन है कि if any citizen of India want to ask any question to the parliament indirectly, is it possible? क्या मतलब कि पार्लियामेंट से कोई डायरेक्ट सवाल करे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप पार्लियामेंट से, अगर पार्लियामेंट में आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको MP का इलेक्शन जीतना पड़ेगा। हाँ, अपनी आवाज भेज सकते हैं क्योंकि हमने MP को चुना है इलेक्शन के माध्यम से। अपने एरिया का जो MP है उसके पास जाइए और लिखित में दीजिए कि ये पार्लियामेंट में ये जो है इस तरीके की जो बात हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उस पर आप डिस्कशन करिए, आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए इलेक्शन जीतना पड़ेगा। फिर सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फायदा क्या हुआ? नहीं, we don't have direct democracy, we have indirect democracy. On behalf of us, our जो member of parliament are responsible to make the law, ठीक है ना, तो we have indirect democracy. Our democracy is the representative democracy. Representative democracy, indirect democracy you can say. Okay. Thank you, sir. Okay. It is very wonderful lecture and wonderful conversation with all participants. What is doing our government? Now I invite our honorable principal, Ma'am Dr. Vima Sharma ji, please say a few words regarding this national webinar. Please, ma'am. Hello. Thank you, Dr. Manjeet Singh ji. First of all, I would say that this webinar was the most effective webinar as per the questions which rise in a bulk from the students, from the participants, as well as from the colleague community also. So I would like to thank Dr. Amit ji also. Sir, no doubt the topic is definitely debatable, because we all know it very well the present scenario of our constitutional is, you can say our political system is not satisfactory. We all know it very well. Okay, the constitution is being exploited by our various peoples who can. So I think the version which was given by you 2 or 3 times
if we be successful for the Lokpal, then each and every problem will be automatically solved. So I am fully agree with you, sir. And the one more thing, this is also right. This is also perfectly said that if we really love our country, if we are patriotic in real sense, then definitely we will never try to exploit, we will never try to avail any loophole of any law or any situation, politically or legally. So I would again like to say that it was a very fruitful webinar, and the information detailed shared by your good self is really appreciable. And the one thing more, sir, I am proud to see that you have very well equipped these both social sciences, uh, public ed as well as history, because historical perspective, I don't think it was easy to convey, and to as we all know, it was conveyed in a very detailed manner, so that you have invited so many queries and questions also. So once again, very congrats to Dr. Manjeet Singh, and heartily thanks to Dr. Amit for this fruitful and informative webinar. Thanks a lot. Thank you very much, madam. Thank you. Thank you, ma'am. और मुझे मौका देने के लिए मंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद. आपके साथ इंटरेक्शन हुआ. Now I invite our colleague Professor Satpal Kaur ma'am for vote of thanks to all participants, because most of the participants are connected here in this webinar from Kargil to Chennai, Gujarat to Guwahati, and 18 states and 3 union territories participants are being connected with us. So I invite Professor Satpal ma'am for vote of thanks to all participants and our guest speaker. Thank you, ma'am. Anji. Good afternoon, everyone. I, on behalf of Department of History, am thankful to SD College Managing Committee, Principal Dr. Raman Sharma, who motivated us to organize this webinar. I also express my gratitude to today's key speaker, Dr. Amit Kumar, Head of Department, Public Administration, SD College Barnala, who widened our area of knowledge by telling us the formation of Indian Constitution, its preamble, and important facts. Overall, it was an indeed knowledgeable experience. This webinar will be fruitful to all the students. I am thankful to our faculty members, students, as well as teachers, students, research scholars of other colleges and universities. Lastly, I value the technical support provided by Professor Harkamal Singh ji and Professor Gaurav ji. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I request to our principal ma'am, we want to take permission to close this webinar today. Dr. Manjeet Singh ji, before granting you permission to formally close this meeting, I would again like to say a few words. Yes, ma'am, please. Being a principal of SD College, I would like to say that we all are privileged to have such a supporting and encouraging management on our back. So this webinar is an example for that long story of successes also. So we are also lucky enough to have the staff like Professor Gaurav, Professor Dr. Harkamal, and Dr. Manjeet, and all the SD Parivar. That's why we always
define it in the term ST Parivar. So once again, I would like to congratulate our entire ST Parivar for this one, another feather in the cap of ST Parivar. Thanks to all participants. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Dear all participants, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाला, प्लीज वो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं आता है तो हमें मेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आज का वेबिनार हम प्रिंसिपल मैम की परमिशन से यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स टू जॉइन अस, बी सेफ फ्रॉम कोरोना। थैंक यू वेरी मच। Thank you.